All right, Bismillah Rahman Rahim. Today we're going to cover up another type of question, and that is again from summary completion type of question. Summary completion. If you remember that day, we studied summary completion without options. And I had told you that there are two types of summary completion type of questions. Number one, without options, and number two, with options. So we have already studied it, and today we're going to talk about with options. Okay, I will also ask you, Claire, so be with me. Do you remember summary completion type of question? The point I had given you that in summary completion type of question, the summary is not for the whole passage, but in fact it comes from a specific either one paragraph or two paragraphs. Do you remember that? Yes, sir. Okay. Uh, those students, they think like summary is, it comes from the whole passage. So there is no reality behind that. For example, look, this is my whole passage, and there are a couple of paragraphs. So if I keep reading the whole passage, it takes long time then. So what I'm supposed to do, uh, that I have to find out, first of all, the correct paragraph, and the summary completion might be Claire, you may cover it for one paragraph or two paragraphs only. Okay, without options, if you remember, we didn't have any type of options like them. Can you see? There are a couple of options. And in fact, options are more than the questions. If you count down the options, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 10 options. And the questions, if you count them, that's the questions are six only. So it means three options are extra. Three options are extra. So what does it mean? The three options won't be used. Uh, is we studied clear कि जो पहला वाला पोर्शन था विदाउट ऑप्शंस वन, हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं थे, एम आई राइट? ये ऑप्शंस हमारे पास वहां पर नहीं थे. We didn't have any options like this, but now we have options. अच्छा, तरीकाकार सेम टू सेम है, like it doesn't have any difference, but difference क्या है? They are a bit challenging. These type of questions are a bit more challenging than that of without options. अब challenging क्यों है? क्योंकि इसमें आप लोग का काम जो जो है वो थोड़ा डबल होगा. कैसे डबल होगा? आई एम गोइंग टू गाइड यू. अच्छा, जो विदाउट ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने मतलब फॉर एग्जांपल जो भी मिसिंग वर्ड था, जैसे यहाँ पे इफ यू जस्ट फोकस है, अब ये मेरा ब्लैंक है, ठीक है, दिस इज द ब्लैंक. सो जो मिसिंग वर्ड है, आप लोग स्ट्रेट अवे यू वुड फाइंड इट आउट इन एनी ऑफ द पैराग्राफ में, कहीं पर भी. सपोज ये प्रोमोटेड आ रहा है सही जवाब, तो प्रोमोटेड को आप उठा के यहाँ पे लिख देते हैं, एंड दैट यूज टू बी द करेक्ट आंसर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग का यहाँ पे काम जो है वो डबल होगा. डबल कैसे होगा? सबसे पहले आपने इस जगह का ये जो मिसिंग ब्लैंक है, दिस द ब्लैंक, जो मिसिंग वर्ड है, तो मिसिंग वर्ड के लिए आप लोगों ने क्या करना है? यू आर सपोज टू फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड. सपोज यहाँ पे प्रोमोटेड है, सो आई फाउंड दैट द करेक्ट वर्ड क्लियर दैट मैचेस एग्जैक्टली द सेम, इट कम्स इन दिस ब्लैंक दैट इज प्रोमोटेड. After that, once you found clear, you found it promoted. After that, what you are supposed to do? Then you will match. You're going to match with these options. Can you see that? Can you find the synonym for promoted over here in these options? तो मतलब सबसे पहले आपने जगह जो पैराग्राफ है वहां से अपने एग्जैक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू आर सपोज टू डू, फिर वही वर्ड आके यहाँ पे ऑप्शंस के साथ अपने मैच भी करना है. तो मतलब आपका काम यहाँ पे डबल हो रहा है. जो विदाउट ऑप्शंस थे, तो उसमें मतलब काम सिंपल था. फॉर एग्जाम्पल, प्रोमोटेड आंसर है तो आप सर ब्लैंक में प्रोमोटेड ही लिखे. इसमें आपने सर पहले वर्ड फाइंड आउट करने हैं, एंड देन यू आर सपोज टू मैच with the provided options. तो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो प्रीवियसली द लेक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट
देयर ऑफ योर समरी कंप्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि सबसे पहले आप लोगों ने सही जगह फाइंड आउट करने, लाइक करेक्ट पैराग्राफ, क्योंकि ये समरी कंप्लीशन इट डजंट कम फ्रॉम द होल पैसेज। क्लियर? ये होल पैसेज की समरी तो नहीं है। तो अगर इफ दैट्स नॉट द केस, अगर ये इफ इट डजंट कम फ्रॉम द होल पैसेज, तो अब ये पैराग्राफ तो काफी ज्यादा पैराग्राफ्स है। तो मैंने सबसे पहले क्या, कौन सा पैराग्राफ, दिस इज योर हेडिंग, व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल एनकाउंटर मिस इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि करेक्ट पैराग्राफ को ढूंढना है। अब यहाँ पे मिस इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, कैन यू सी? एम आई राइट? अच्छा, आप लोग मेरे साथ थोड़ा बोले प्लीज, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ सही तरीके से आ जाए। अगर आप के पास कोई नहीं है एंड तो आप अपने माइक्स को प्लीज ऑन रखें एंड लेट्स टॉक अबाउट इट, क्लियर, ताकि डिस्कशन हो तो डिस्कशन में बेहतर आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो टाइटल है, तो टाइटल किस चीज के बारे में है? टाइटल इज ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल एनकाउंटर मिस इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन तो है, एम आई राइट? इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन तो है। सो कैन यू फाइंड Excuse me, sir. क्लियर अबाउट व्हाट, अबाउट the thing what they Encounter. want to ask about, that what happens, ये क्या लिख रहे हैं? क्या होगा? what happens, क्या होता है when people encounter misinformation? So misinformation both What happened? deliberately promoted, or and accidentally shared is perhaps clear inventable part of the world in which we live. तो do you think like ये अगर ये टॉपिक सेंटेंस आप रीड करें, ये मिस इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे डिफिनीशन मिला है, कैन यू सी दिस द डिफिनीशन? देश का मतलब क्या होता है? देश, यहाँ पे देश मिला है, तो इस देश का मतलब क्या है? डिफिनीशन। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है? सो जस्ट डिफिनीशन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे डिफिनीशन तो फाइंड आउट नहीं कर रहे, एम आई राइट? हेलो? Yes, sir. तो Yes, मतलब इस sir. Yes, पैराग्राफ में sir. नहीं है। दूसरा पैराग्राफ आप लिखे, तो हाउएवर वी करंटली लिव इन एरा इन विच टेक्नोलॉजी एनेबल्स इंफॉर्मेशन टू रीच। तो यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी एनेबल्स टू रीच लार्ज ऑडियंस। तो डू यू थिंक कि इस पैराग्राफ से ये आ सकता है? Sir, people और audience ये हम एक समझ सकते हैं। लेकिन ये पूछ रहे कि व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल एनकाउंटर मिस इन्फॉर्मेशन, ये तो पूरा प्रोसेस के बारे में बोल रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे तो प्रोसेस दे क्या, वी करंटली लिव इन विच टेक्नोलॉजी एनेबल्स इंफॉर्मेशन, यहाँ पे तो मिस इन्फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही। कैन यू फाइंड एनीथिंग Good रिलेटेड टू मिस paragraph है। इन्फॉर्मेशन? Yes, ये yes, तो sir. इंफॉर्मेशन है, कैन यू सी? Depicts from Yes, misinformation. sir. या द क्वेश्चन इज व्हाट, ये encounter misinformation and it talks about technology enables information। तो ये तो गलत है। ये इंफॉर्मेशन के बारे में, वो मिस ये इंफॉर्मेशन के बारे में। चौथे लाइन में है ये करेक्ट मिस क्या इन्फॉर्मेशन चौथे लाइन में क्या है? ये नीचे। ये वाला? अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि thus the potential for immediate and widespread effects from misinformation। तो यहाँ पे तो what happens when people encounter, इसके बारे में तो कुछ भी जिक्र नहीं है। अब इसके देखिए नीचे नीचे आ सर जाए, तो दूसरा Next पैराग्राफ paragraph. जल्दी से आप रीड करते जाए। पहला लाइन, ठीक है आपको, द मेन क्लियर वरी रिगार्डिंग मिस इन्फॉर्मेशन इज इट्स पोटेंशियल टू अनडूली इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर। यहाँ पे क्या हो रहा है? लीडिंग पीपल टू थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली देन दे वुड इफ दे वर करेक्टली इन्फॉर्म्ड। सो डू यू हैव एनीथिंग लाइक व्हाट हैपेंस? इस चीज के बारे में कुछ जिक्र है कि क्या होगा? No. नहीं है ना? पीपल विल एक्ट डिफरेंटली। नहीं, नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एंड at least three observations related to misinformation. So they talk about what? Three Excuse me, observations. sir. जी जी, yes please। हेलो सर, जिन्होंने आज फर्स्ट डे ज्वाइन किया तो बाद में बच्चे, डायरेक्ट बाद में I will guide you a bit later on, okay? Let me complete, then I will guide you later on, ठीक है? Be with me। But this one, the next one paragraph, Yeah, knowing what happened. exactly, can you see here? Yes, Knowing, sir. अच्छा, आप लोग अपने वक्त को बर्बाद ना करें, क्योंकि जो पैराग्राफ है वहां पे रीच करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, रीचिंग द करेक्ट पैराग्राफ। अगर आप गलत जगह पे, मतलब वहां पे लटके हुए, सो यू विल वेस्ट योर टाइम देन। तो यहां पे देखिए क्लियरली लिखा है, नोइंग व्हाट हैपेंस when people initially encounter misinformation holds tremendous importance for estimating potential for subsequent problems।
तो ये ठीक आ रहा है कि नहीं, क्योंकि दे हैव टॉक्ड अबाउट पीपल एंड व्हाट हैपेंस। एम आई राइट? अब क्या करना है आप Yes, लोगों ने? sir. अब हमने क्या करना है राइट नाउ? अब सवाल की तरफ आ जाए, ठीक है? अब सवाल की तरफ आ जाए। सवाल में देखिए यहां पे लिखा है ओल्ड दो, स्टार्ट हुआ है क्या? कंट्रास्ट से, ओल्ड दो। और Yes, कैन यू sir. सी ओल्ड दो? Although. Yes, sir. ग्रेट। Sir. पीपल हैव, Third line. अच्छा, पीपल हैव डैश टू मिस इंफॉर्मेशन। पीपल हैव, पीपल हैव False. डैश टू मिस इंफॉर्मेशन। False. सॉरी? Information is false. अच्छा, ओके, पहले मतलब सवाल को समझे आप लोग, यहां तक आपने समझना है, क्योंकि जुमला यहां पे खत्म तो नहीं होता। द सेकेंड पार्ट इज स्टिल रिमेनिंग दिस पार्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ पार्ट्स। आपने वहां पे जाके ये ओल्ड दो से लेके अनट्रू तक ये हिस्सा आपने फाइंड आउट करना है। यहां पर कहां तक है, यहां तक आपने फाइंड करना है। शाबाश, जल्दी करें, Although it is रीड करें, शाबाश। Debate तक sir. Debate. अच्छा, कहां तक है? डिबेट तक है ना? Yes, यहां तक sir. है ना? Yes. एम आई राइट? Yes, sir. ये कह रहे Yes, sir. ओल्दो इट इज फेयरली रूटीन, it's fairly routine. For whom? For individuals. Individuals mean people. Individuals. People. ये मतलब लोगों का क्या है? एक प्रॉपर रूटीन है। किस चीज का रूटीन है? To come across information that is false. To come across information that is false. तो मतलब if they come across information that is false, so don't you think that's misinformation? information. हाँ, ये Yes. मुझे पता है, ये मुझे बताए कि कम अक्रॉस Came इंफॉर्मेशन across. दैट इज फॉल्स। ये कहाँ पे आप या सवाल में देखे कहाँ पे ये मैच हो रहा है? To misinformation, sir. एक्सेलेंट, मिस इंफॉर्मेशन के साथ। Misinformation. अच्छा, आपको याद है, आप लोग को याद है जब मैं आप लोग को स्ट्रेटजीज दे रहा था, सो आई टोल्ड यू ऑल कि आपने एक वर्ड को, ठीक है, दे विल प्रोवाइड यू अ सिंगल वर्ड फॉर अ फ्रेज और एक्सप्लेनेशन। याद है ना आप लोग को? अब यहां पे देखिए कि इट्स अ सिंगल वर्ड, इजंट इट? दिस इज अ सिंगल वर्ड, मिस इंफॉर्मेशन। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? Yes. प्रॉपर तरीके से दे हैव एक्सप्लेन्ड इट। एम आई राइट? Okay, sir. अब देखिए आप लोगों ने क्या करना है कि दे सेड कि it's a fairly clear, it's a fairly routine for individuals to come across information that is false। और फिर क्या कह रहे? मतलब ये है कि ये जवाब तो यहां पे हो सकता है ना? जवाब मेरा कहां पे? फर्स्ट Fairly लाइन में हो routine. सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहां पे ये पीछे है। Yeah. फिर क्या कह रहे? देयर इज अबाउट precisely how and when we label something as true or untrue। अब इसमें देखे द क्वेश्चन, कैन यू सी? सवाल ये Yes, है, sir. Yes, sir. क्लियर? हाउ एंड व्हेन सवाल है ना? हाउ एंड व्हेन। Yeah. प्रिसाइसली का मतलब क्या है? एग्जैक्टली हाउ एंड व्हेन we mentally can you see they have mentioned we as well? We mentally Yeah. label information as true or false, has, clear? It's what? It's a philosophical debate। तो मुझे ये Debate. बताइए कि आप लोग के ख्याल में यहां पे जो मिसिंग वर्ड्स है, जो ब्लैंक है, इसमें क्या आ सकते हैं? मतलब Sir, इससे मतलब आप लोग को कहां से पता चल रहा है कि ये अल्फाज सर हो सकते हैं? sir, frequent Fairly exposure. routine. या फेयरली रूटीन, एक्सलेंट, Fairly ओके, routine. वेरी गुड। क्यों फेयरली रूटीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पीपल ऑलरेडी है कि नहीं? और पीपल Yes, sir. पीपल के लिए लोगों ने क्या इस्तेमाल किया? इंडिविजुअल, राइट? Individual. अब ऑल दो ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं? ऑल दो भी है, और क्योंकि ये कम अक्रॉस मिस इंफॉर्मेशन ये भी है, तो मतलब यहां पे Yes, जो sir. मिस हुआ क्या हुआ? फेयरली रूटीन। अब यही फेयरली रूटीन वर्ड को आपने उठाना है। आप यहां पे आ जाइए ऑप्शंस में, आप खुद देखिए कि फेयरली रूटीन के लिए यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। Frequent ऑप्शंस में exposure, sir. देखिए। हाँ, Frequent exposure. एक्सलेंट, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया? फेयरली रूटीन है, तो इफ ये रोजमर्रा का मामूल है ना, तो इनका फ्रीक्वेंट, फेयरली रूटीन का मतलब है फ्रीक्वेंट एक्सपोजर। So what we can Frequent. say that people have frequent exposure. So I can just mark it. People have frequent exposure. So option number G can be the right one. Am I right? Yes, sir. Acha. Then we will move towards the second part.
एनी क्वेश्चंस प्लीज? सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, ओके, sir. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 32. अब यहां पे सबसे पहले कितने साइंटिस्ट है, फिलोसफर्स है? 2. कैन यू सी? वी हैव गॉट 2 फिलोसफर्स. तो Yes, सबसे sir. पहले इन Sir. फिलोसफर्स तो इसी पैराग्राफ में आएंगे ना. सो कैन यू सी फिलोसफर्स? Yes, sir. 17th century या, philosopher. they are the, yeah, these two are the philosophers, right? अब क्या कह रहे Yes, sir. है देश about how people engage with information. इन दोनों का क्या था? सर सॉरी, ये तो बिल्कुल बस ये तो सर बिल्कुल ही एंगेजमेंट तक सर मिल जाएगा इसका एग्जैक्टली क्लियर. तो मतलब ये खत्म कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे, हाँ, जुमला यहाँ पे खत्म बेस हो रहा है. बेस तो मतलब यहाँ तक देख ले तो आपको बेस मतलब सर जवाब मिल सकता है. Information रीड करें शाबाश. reflecting. सर ह्यूमन इंफॉर्मेशन क्या हो सकते हैं? ह्यूमन पीपल एंगेज विद ह्यूमन इंफॉर्मेशन सर हम्म, Sir, described. या डिस्क्राइब ह्यूमन इंफॉर्मेशन तो उधर है पीपल एंगेज विद इंफॉर्मेशन Described. डिस्क्राइब क्या? Sir, described आएगा ना. People engage तो वो हो गया with information तो. अब देखिए, Describe है. ये सेक्शन, ये पार्ट 3 है लिसनिंग का, रीडिंग का, ठीक है. एंड पैसेज 3 रिक्वायर्स मोर क्लियर क्रिटिकल थिंकिंग कंप्रहेंशन. ये इतना आसानी से नहीं देगा. ये बंदे कितने हैं आप मुझे बताएं. अच्छा जी, आप छोड़े मैंने. Conflicting अब predictions. अब पहले Constant सबसे conflict. पहले different ideas. कहाँ से डिफरेंट आइडियाज है? I think okay. कहाँ से आपको पता है कि डिफरेंट आइडियाज है? डिस्क्राइब की जगह क्योंकि Conflicting दो लोग prediction. हैं. सर conflict से idea मिला. कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट आएगी सर मतलब कहाँ पे कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर है? Engagement and conflicting predictions. Number A. यस सर यही आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट द प्रेडिक्शन आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट Conflict है, आ रहा क्या है? कॉन्फ्लिक्ट सही हो सकता है. सर प्रेडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ पे है ना, इधर नीचे लाइन में देखे तो उनको conflicting आग है. predictions that only recently have been empirically tested देखिए, लेकिन सर उधर भी लिखा है while Descartes believed that people accept or reject information after considering ये भी अच्छा, वो आ रहा है ना हाँ, क्वेश्चन में अच्छा, तो एक बंदे ने किया हुआ है ना. एक्सलेंट. तो आप लोग क्या कह रहे हैं? दे टॉक अबाउट, देखे, ये कह रहे, बंदे यहाँ पे कह रहे क्लियरली कि द डिलेमा इज नीटली समराइज्ड. समराइज्ड बाय व्हाट? by बाय contrast कंट्रास्ट. तो कंट्रास्ट का मतलब क्या है? सेम है कि डिफरेंट है? Different ideas. Different डिफरेंट है ना. ideas. समराइज्ड बाय व्हाट? बाय कंट्रास्ट. कंट्रास्ट मतलब है डिफरेंट बिटवीन हाउ 17th century philosophers. तो कितने फिलोसफर्स थे? 2 थे कि नहीं? दो philosophers हाँ, और तो different उन दोनों ideas. फिलोसफर्स का, इन दोनों फिलोसफर डिस्क्राइब ह्यूमन इंफॉर्मेशन एंगेजमेंट विद व्हाट? विद कंफ्लिक्टिंग सर वोकैबुलरी प्रेडिक्शंस. बड़ी काम आएगी सर वोकैबुलरी इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के कंप्रहेंशन है ना. अब इसमें तो कोई वर्ड नहीं है कि आप समझ नहीं आएगी आपको. इट्स ऑल अबाउट व्हाट? समराइज बाय कंट्रास्ट. समराइज बाय कंट्रास्ट बिटवीन, किस चीज का? बिटवीन द 17th century philosophers. ये 2 बंदे हैं. डिस्क्राइब ह्यूमन इंफॉर्मेशन एंगेजमेंट विद कंफ्लिक्टिंग प्रेडिक्शन. इन दोनों का क्या था? कंफ्लिक्टिंग प्रेडिक्शंस थे. इनके दोनों के प्रेडिक्शंस ये लड़ तो नहीं रहे थे ना. क्लियर? Yeah. क्या कह रहे थे? ये बंदा कह रहा है, मुख्तलिफ ideas थे. he argued that a person only accepts or rejects information after considering its truth or falsehood. और ये क्या कह रहा था? यहाँ से भी पता चल रहा है, सिंपल एक वर्ड से यहाँ से भी पता चल रहा है, नीचे भी पता चल रहा है. Argued that people accept all encounter information or misinformation by default and then subsequently verify or reject through a separate cognitive process. समझ रहे आप लोग?
लेकिन यहाँ पे ये तो नीचे आ रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि हमारा काम यहाँ तक था। हाँ, वी यूज टू डील टिल दिस पॉइंट ओनली। समझ रहे आप लोग? अब ये वाइल, ये जो बिलीव है वो तो नीचे यहां से अगर हम रीड करना चाहते हैं, ये तो नीचे आ रहा है फॉर दिस पार्ट, ये तो इस पार्ट के लिए आ रहा है। इसके साथ तो अभी मेरा काम नहीं है ना, आई एम नॉट कंसर्न विद दिस पार्ट। तो इसका मतलब क्या है कि माई आंसर आई कैन क्वाइट इजीली फाइंड आउट फ्रॉम हेयर, because that it's neatly summarized by contrast between how many people, between two people. So अब मुझे बताइए दोनों का जो आइडिया था वो डिफरेंट था कि सेम था? Different. Different. So what can be the right Different answer idea. then? So the right answer Different can be what? idea. Different ideas. Different ideas. Yeah. Yes. So I can simply write down J. अब दोबारा यहां से देखें, while this belief that people accept or reject information after considering whether it is true or not, ये एक हिस्सा हुआ कि नहीं? तो इसके लिए इन लोगों ने क्या लिखा है? देखिए, इसके लिए मतलब यहां पे आया ना, यहां तक, Yes, sir. ठीक है ना? ये तो खत्म हुआ, इसमें तो मतलब कोई ब्लैंक नहीं है, ये तो डन है। फिर उसके Accept or बाद क्या है? reject. स्पिनोसा आया, ठीक है? सो ही वांट्स टू टॉक, सो व्हाट ही वांट्स टू टॉक, ये कह रहा है अर्ग्यूड। इसका सबसे पहले मतलब इसके दो दो पॉइंट्स है। इसने कितने पॉइंट्स अर्ग्यू किए? दो। दो पॉइंट्स कैसे इसके आर्गुमेंट है? क्योंकि मोर ओवर भी लिखा है ना। कैन यू सी मोर ओवर? तो पहले ये पॉइंट है, एक पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही वांट्स टू टॉक, Spinoza argued that people accept or encounter information or misinformation by what? By By default. default. तो मतलब यहां तक देखिए, एक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? ये पहला वाला यहां तक। और इसी फिर में इन लोगों सर। ने क्या लिखा है? एंड। कैन यू सी एंड? एंड है कि नहीं? यस सर। तो मतलब एंड आया, तो एंड का मतलब क्या है? मोर ओवर, Yes, sir. सबसीक्वेंटली। तो ये दोबारा इनका मतलब क्या हो रहा है? अभी दोबारा एक दूसरे, अब ये सवाल जो है ना इस लाइन के बाद शुरू होगा यहां पर। समझ रहे आप लोग? तो अब मुझे बताएं, Yes, sir. Spinoza believed that a distinct dash is involved in these stages. क्या लिखा है? In these stages. Cognitive. तो stages का मतलब क्या है? स्टेज का मतलब है प्रोसेस, सेम है ना? stages means process। और distinct का मतलब क्या है? different। Different. डिफरेंट के लिए इन लोगों ने क्या लिखा है? सेपरेट लिखा है कि नहीं? तो Yes, सही sir. जवाब कौन सा आ सकता है? कॉग्निटिव। Sir, cognitive. सर कॉग्निटिव। इसकी तो अब मुझे बताइए, Synonym. अब हमने वापस Synonym. जाना है, वी विल सिनोनिम मूव, कैसे ढूंढेंगे वी सर? मूव बैक। क्लियर? कि कॉग्निटिव के लिए आप देखिए कि कॉग्निटिव के लिए अब वहां पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है। लेट मी शो यू द Mental. अच्छा, अब बताइए Mental. कि कॉग्निटिव किस चीज से रिलेटेड वर्ड है? Mental. Mental operations. एक्सेलेंट। Thinking कॉग्निटिव से थिंकिंग से रिलेटेड है ना? Excellent. So what we can say, we can talk about mental Mental operation. operation. mental operation. Very good. Yes, So sir. I can write Mental down what? operation. H. Cognitive means H, mental operation. क्योंकि cognitive का मतलब यही है। Very good. अब Mental more over, तो ये क्लियर हुआ ना? अब यहां पे देखिए, सही सही जबरदस्त आ रहे हैं कि नहीं हम लोग? ये रिसेंट रिसर्च लिखा हुआ है कि नहीं? तो कॉग्निटिव प्रोसेस तक तो ये खत्म हुआ। अब यहां पे देखिए रिसेंट डिकेड्स आया कि नहीं? Yes, sir. अब यहां पे रिसेंट रिसर्च हैज प्रोवाइडेड डैश फॉर स्पिनोजा थ्योरी। अच्छा, इनके जो थ्योरी था उसके इसके लिए इसने क्या चीज मतलब प्रोवाइड कर दिया? तो एविडेंस Empirical प्रोवाइड कर evidence. सकते हैं, राइट? प्रोवाइड कर Yes, सकते sir. हैं ना? Evidence. हाँ, तो ये देखिए, एम्पेरिकल एविडेंस फ्रॉम द रिसर्च टीम, एविडेंस तो यही प्रोवाइड है। कर चुका है ना? यस सर। तो Yes, sir. अब थोड़ा जाए, और एविडेंस के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है? Additional evidence. Additional evidence. अच्छा, तो मतलब शुड आई राइट एडिशनल एविडेंस है? Empirical means sir additional. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इन लोगों ने, हैज प्रोवाइडेड डैश। Empirical. नंबर 34 में देखिए, हैज प्रोवाइडेड डैश। तो आप खुद ही Empirical. देखिए, तो या Additional एम्पेरिकल evidence. क्या है? एम्पेरिकल, Additional. क्लियर? ये Data. एम्पेरिकल एविडेंस। तो एविडेंस यहाँ पे है, तो इन लोगों ने डायरेक्टली, इसमें तो है कि मतलब डायरेक्टली पता चल रहा है, बाज़ काफी ज्यादा आसान होंगे। हैज प्रोवाइडेड एविडेंस, तो अब हमें यहां से मतलब लॉजिकली इट आल्सो गिव्स अस व्हाट? क्लियर मीनिंग। सो कैन आई गो टू सेलेक्ट ऑप्शन नंबर बी? Yes sir. सो बी, Yes. एविडेंस, एविडेंस ही लिखा है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? देन इट टॉक्स अबाउट
and it would appear that people accept all encounter information as if it were true, even if this is for an extremely dash. Can you see extremely? It's an adverb. It's an adverb. तो अब देखिए यहां पे पहले सबसे देखिए कि इसके लिए आप लोग एक्सट्रीमली के लिए क्या आपके ख्याल में सही आ सकता है, मतलब F. विदाउट इवन लुकिंग द पैसेज. F. Extreme extreme Distrust, sir. Extremely. Extreme Distrust. distrust. F. F F. option. अच्छा, अब इन लोगों ने लिखा है एक्सट्रीमली. ठीक है, तो हमने वापस जाना है और ये देखना है एन एट एंड लिखा है. कैन यू सी एंड एट वुड. तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है एंड. तो ये कीप कंटिन्यू, यू कैन रीड इट. क्लियर? ये हुआ यूनिवर्सिटी अमॉन्ग अदर्स हैज सपोर्टेड स्पिनोजा अकाउंट. ओके, पीपल अपीयर टू and later एनकोड state. all new information as if it were true. लिखा है ना? अच्छा, यहां पे देखिए as if it were true. कंप्लीट हो रहा है यहां तक कि नहीं? Yes, sir. और फिर ये क्या कह रहे हैं? even. even है कि नहीं हमारे पास? Can you Yes, see sir. even? If this Yes, is sir. for an extremely dash, तो यहां पे या कामा है कि नहीं? तो मतलब मेरा जवाब इस वर्ड में है कि नहीं? Yes, sir. Momentarily. Only. अब देखिए एक्सट्रीमली के लिए इन लोगों ने क्या लिखा है? Only. Only momentarily. Yeah, only momentarily. So what do you mean by momentarily? इसके लिए आप देखिए कि क्या वर्ड आ सकता है. Momentarily का क्या है? Moment. Moment किस चीज से रिलेटेड है? Period. Short period. Short period. Short. Excellent. Extremely short period, right? Momentarily. Only if in momentarily. So we can simply say what? What can be the right answer? Yeah, E. Very good. E can be the right answer. Excuse me, sir. Yes, please. Like the extremely and only they are related to each other. How? Like they are. How they अब देख- are अच्छा, related? आप How we कंटेक्चुअल say? मीनिंग को देखे. आप कंटेक्चुअल मीनिंग को देखे. ठीक है? Okay. कंटेक्चुअल मीनिंग पे आप फोकस. आपने कंटेक्चुअल मीनिंग पे फोकस देना है, सिनोनिम पे नहीं. मतलब जुमले को आपने देखना है कि पूरा जुमला क्या मीनिंग दे रहा है. क्योंकि इन लोगों ने क्या लिखा है? इवन इफ दिस इज फॉर एन एक्सट्रीमली. क्लियर? तो मतलब एक्सट्रीम में क्या होता है? आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता ना, एक्सट्रीम लेवल होता है. Okay. तो ओनली Yeah. एक्सट्रीमली. क्लियर? सर ये काइंडली समझा दें और सॉरी. सर ये पॉइंट्स आप रिलेट कर रहे हैं ना. एग्जैक्टली. तो कंटेक्चुअल मीनिंग को आप लोगों ने देखना है, सिनोनिम नहीं. अच्छा, मेरी बात सुने. जो भी स्टूडेंट, anyone among you who tries to deal only with the synonyms, they will conclude only and only at 5.5 band. आप लोगों ने किस चीज को देखना है? मीनिंग को देखना है. आप लोगों ने किस चीज को देखना है? आपने कॉन्टेक्स्ट को देखना है कि कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग सही आ रहा है. समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि यहां पे देखिए, अगर आप यहां से जुमले देखें, यहां पे कामा है कि नहीं? इवन से पहले है ना? यस अब यहां पे देखें हमारे पास कामा है कि नहीं? है कि नहीं? और even have it. And again we have got what? After that there is comma. Can you see comma? Yes, sir. यस सर. And can you see and? तो देखिए यहां पे स्ट्रक्चर बहुत ही सही तरीके से जा रहा है. Can you see? जी. अच्छा, Yes, यहां sir. पे क्या Yes, है? sir. अब मुझे बताएं, आप लोग तो मतलब ब्रांड के शौकीन हैं, तो लेबल लगा होता है ना, टैग लगा होता है कि नहीं? यस सर. Yes, ठीक है? yes, sir. Yeah, take the information. Take the information means what? Label the information. लेबल दें. सही जवाब मिल रहा है कि नहीं आपको? Is true or false until later. Yes, sir. ठीक है? एंड यहां पे क्या लिखा? Is being either true or false. सही जा रहा है ना? मीनिंग ठीक जा रहा है यहां पे. अब क्या Yes, कह sir. रहे? फिर क्या कह रहे? This is clear. This is consistent with the fact. This is consistent with the fact that the resources for septisms and resources for perceiving and encoding are and the dash and the brain. तो ब्रेन से रिलेटेड है. तो अब आ जाए यहां पे क्या लिख रहा है? यहां पे इन लोगों ने क्या लिखा है? पैटर्न दैट सीम्स कंसिस्टेंट लिखा है यहां पे. पैटर्न कंसिस्टेंट लिखा है यहां पर भी है. सेम टू सेम है. with the observation that mental resources, यहां पे क्या लिखा है? mental resources for
स्केप्टिज्म, फिजिकली रिजाइड का मतलब क्या है? लिव, Live. ठीक है? रिजाइड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, रिजाइड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और इन लोगों ने क्या लिखा है? आर एन डैश इन द ब्रेन, तो डिफरेंट हुआ कि नहीं? डिफरेंट Yes. पार्ट, तो ब्रेन के इससे कौन से हिस्से में? मुख्तलिफ हिस्सों में। अब हमने वापस जाने और ये देखने के डिफरेंट पार्ट के लिए आप ही क्या है? Different locations. Different locations. Excellent. Different part means what? Locations. So simple, Different straight away locations. I will come and I will write down option number, what is that option? That is C. C. Little bit challenging. या सर मुश्किल है सर। नहीं बच्चे, आसान है, बहुत आसान है। इतना आसान होता तो सर लेकिन इसमें ये अगर फाइंड आउट कर लेना कि कौन से पैराग्राफ में, तो जी। फिर कुछ ना कुछ 4-5 सही हो जाएंगे। न, तो तीन तो चार सबसे पहले हमने किस चीज को फाइंड आउट कर दिया? पैराग्राफ। और ये लेकिन एक ही पैराग्राफ में सारे आंसर्स थे कि नहीं? पूरे पैसेज में थे? सर पैराग्राफ में थे ना, उसी पैराग्राफ। एग्जैक्टली उसी एक पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को फाइंड आउट कर देने से इजी, लेकिन क्वाइट सर इजी। सर जी। सर इसमें तो ज्यादातर वर्डिंग सेम थी ना, तो इस तरह भी आएगा कि वर्डिंग बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होंगी, तो फिर किस तरह फाइंड आउट करेंगे नहीं, सर? ऐसा नहीं हो सकता भाई, आपको पता चल रहा होगा क्योंकि है, मेरी बात सुने। जो भी आपको पैराग्राफ वहां पे मिला है, दोनों पैराग्राफ का मतलब क्या है? मीनिंग सेम। मतलब आप है, मैं मेरी बात सुने। आप शीशे में अपने आप को देखते हैं ना? जी सर। सो ये दोनों पैराग्राफ, दैट्स द मिरर इमेज ऑफ यूर्स। क्या हुआ? एक तरफ आप है और एक तरफ शीशे में आप है, दोनों सेम है कि नहीं? मतलब समझना है इसको कि Yes, sir. क्या लिखा सर है। पर ये आपने जो कॉन्टेक्स्ट वाली एग्जैक्ट चीज आपको आएगा। देखिए ये ऐसा नहीं है। अब वहां पे क्या है? स्ट्रक्चर चेंज है, वहां पे सिनोनिम्स यूज हुए हैं। सिंपल इज दैट। अच्छा, सर आई विल बी, यस प्लीज। सर खुदा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना अपने आइडियाज को। पैराग्राफ One हम idea क्लेरिटी represent के लिए करेगा। लिखते हैं, ठीक है? पैराग्राफ देखिए मेरी, अब सबसे पहले आप पैराग्राफिंग पे अपने आप को थोड़ा क्लियर कर दे प्लीज। अब मेरी बात सुने। एक पैराग्राफ का मतलब होता है वन आइडिया। एक पैराग्राफ का मतलब क्या है? वन आइडिया। तो वन हम एक आइडिया। पैराग्राफ में ये नहीं कर सकते कि एक चीज के एडवांटेजेस को और डिसएडवांटेजेस को दोनों एक पैराग्राफ में डाल दे। अगर एक पैराग्राफ एडवांटेजेस है तो दूसरा पैराग्राफ डिसएडवांटेजेस होगा। तो जब आइडिया चेंज है, जब एज आइडिया गेट्स चेंज, सो पैराग्राफ गेट्स चेंज्ड। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जांपल ओके ओके रीडिंग को। तो रीडिंग के बारे में अगर लिखना चाहता हूँ तो रीडिंग के पैराग्राफ वन पैराग्राफ है। अब अगर मैं लिखना चाहता हूँ another paragraph and that is on राइटिंग, तो मैं रीडिंग और राइटिंग को दोनों एक पैराग्राफ में लिख सकता हूँ? No. नो सर। नहीं लिख सकते। सजीला, आपके उससे काफी ज्यादा शोर आता है, ठीक है? इसके ये सजीला अस्ता वाला शोर देर ज्यादा राजी। खैर दे गुजारा कवई हाँ सर पक्के लगे तेरे पंखा माड़े लगाओ। लग बन का सजीला, बन का मुंगा द गरमे नमजान मुड़ को पकेने लगू चिताता शोर रानिशी लग बन का। वन में को सर वन में को। या इट्स ओके। आप ऑन, मतलब मैंने क्या कहा था कि फॉर एग्जांपल इफ